Hello students, good morning. Hope you all are fine at your home and doing well and enjoying your days. Today, me Disha Tripathi again in front of you with a new chapter of your supplementary NCERT book Alien Hand, and today we start the chapter number 7, Chandni. So we start here. Open your books. So here in this chapter, Abu Khan was a person. Once upon a time there lived an old man in Almora. Almora में एक बूढ़ा आदमी रहता था. He was popularly known as Abu Khan and his name was Abu Khan. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. He gave his goats funny names such as कलुआ, मुंगिया और गुजरी. उसके साथ में और कोई नहीं रहता था. उसके साथ में उसके कुछ goats रहती थी, कुछ बकरियां वो अपने साथ में रखता था और उनके नाम क्या क्या रखता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल कलवा, मुंगिया और गुजरी. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one own children. Grazing मतलब चारा चराने के लिए. तो वो उनको अपने साथ में रोज बाहर ले जाता था ग्रेजिंग के लिए और उनसे बातें किया करता था जैसे कि कोई इंसान अपने बच्चों से बातें करता है. At night he would bring them back to his little hut and put a string round the neck of each goat. और रात में वो अपने गोट्स को वापस घर पे लाता था अपने हट पे और उनके गले में चेन बांधकर उनको अपनी झोंपड़ी में बांध दिया करता था. Poor Abu Khan was little unlucky in the matter of his goats. लेकिन जो बेचारा अबू खान था वो थोड़ा सा अनलकी था अपनी बकरियों को लेकर. क्यों? Very often at night, one of the goats would pull at the string till it broke loose, and then would disappear in the hills beyond. उसकी जो बकरियां थी वो अपने स्ट्रिंग्स को खींच कर तोड़कर और रात में गायब हो जाया करती थी. Goats in hilly regions had been tied off trees or poles. जो हिली रीजन की जो बकरी होती है, गोट्स होती है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता बांध के उनको रखे जाना. So they love their freedom because they love their, उनको अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है. अबू खान goats were of the best hill breed. और अबू खान की जो goats थी वो बेस्ट हिल ब्रीड की goats हुआ करती थी. They too loved their freedom और उनको भी अपनी आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करती है. So whenever they got the chance they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. इसलिए रात में वो जब भाग जाया करती थी लेकिन हिल्स में एक बहुत ही भयंकर एक वुल्फ रहता था जो उनको मारकर खा जाया करता था. Whenever one of the goats disappeared, Abu Khan was very sad. जब भी उसकी कोई भी बकरी गायब होती थी तो अबू खान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था, उदास हो जाता था. He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaws of death. उसको ये बात समझ में नहीं आती थी कि अबू खान इतना जूसी ग्रासेस, इतने अच्छा खाना उनको देता था, इतने प्यार से उनको पालता था, फिर भी ये अनफॉर्चुनेट गॉड्स क्यों मौत के मुंह में चली जाती है. मौत के मुंह में क्यों चली जाती है? क्योंकि जैसे ही वो अपनी स्ट्रिंग को तोड़ के भागती थी और पहाड़ी पे जाती थी और पहाड़ी पे सियार जो था वो उनको मारकर खा जाया करता था. तो अबू खान को बहुत ज़्यादा दुख होता था जब कभी ऐसा होता था. Are these gods mad? क्या वो पागल हैं? क्या बात है, वो क्यों तोड़? But freedom means struggle, hardship, even death. अबू खान couldn't solve the mystery. अबू खान को ये बात कभी भी समझ में नहीं आई. One day when all his gods had left him, अबू खान said to him, एक दिन जब उसकी सारी gods भाग के चली गई एक एक करके तो उसने डिसाइड किया, no more goats in my house ever again. अब मैं कभी भी कोई बकरी नहीं लाऊंगा अपने घर में. I may yet live for a few more years, but I will live without gods. मैं बिना gods के ही रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा. However, the poor old man was terribly lonely. He simply couldn't do without his pets. Very soon he bought a young goat. क्योंकि वो बिल्कुल अकेला रह गया था तो वो एक छोटी सी goat को, बकरी के बच्चे को अपने साथ में ले आया. He thought a young goat will stay with me much longer. She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. उसको लगा क्योंकि ये बच्चा है और मेरे साथ रहेगा शुरू से, मैं उसको बहुत अच्छा खाना दूंगा तो ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगी.
शी विल सून बिगिन टू लव मी, और मुझे प्यार भी करने लगेगी. शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, कभी भी पहाड़ी पे जाने की उसकी इच्छा नहीं करेगी. एंड ही लव्ड विद जॉय, वो खुशी से हंसने लगा. द न्यू गॉड वॉज वेरी प्रिटी, बहुत प्यारी थी. प्रीटी मतलब खूबसूरत. शी वॉज वाइट एज स्नो, स्नो के जितना इतनी सफेद थी. एंड हैड 2 लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, छोटे से सर पर 2 प्यारे प्यारे से तो उसके हॉर्न्स भी थे, सींग भी थे. एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आईज, और लाल लाल उसकी चमकदार आंखें. ही हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट, टेम्परामेंट मीन्स व्यवहार, उसका बिहेवियर बहुत ही फ्रेंडली था. एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और अबू खान जिसको कहानियां सुनाता था, टेल्स मीन्स स्टोरीज, उनको बहुत ही ध्यान से और प्यार से वो सुना करती थी. अबू खान कॉल्ड है चांदनी, और उसको क्या कहलाता था, तो अबू खान ने क्या नाम दिया था, चांदनी, विच मीन्स मूनलाइट. He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. अबू खान चांदनी को सारी कहानियां सुनाया करता था उसके फ्रेंड्स की, जो पहले जो गॉड्स थी उनकी, जो अब मर चुकी थी. Several years passed, चांदनी was still there. कुछ साल बीत गए, चांदनी अभी भी अबू खान के साथ थी. Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond. Alas, he was mistaken again. अबू खान सोचता था चांदनी उसके घर के कैंपस को कभी भी छोड़कर नहीं आएगा, लेकिन बेचारा अबू खान वो गलत सोच रहा था. एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिलटॉप बाथ इन द सनलाइट. रोज सुबह चांदनी सुबह जब सूरज निकलता था उसकी रोशनी को पहाड़ी के ऊपर आते हुए देखती थी. हाउ ब्यूटिफुल दोज हिल्स आर, शी थॉट, सोचती थी कितनी खूबसूरत पहाड़ियां हैं. How refreshing the breeze that blows through them. Breeze means air. कितनी refresh airs होती होंगी जो यहाँ पर बहती होगी इन पहाड़ियों में. And how lovely to run across these green fields. और इन हरी हरी fields पे भागना कितना अच्छा होता होगा. She ran towards the hills but had to stop with a jerk. वो भागने की कोशिश करती लेकिन एक झटके के साथ रुक जाती. The rope round her neck wouldn't let her go for further. उसके गले में जो चारों तरफ रस्सी बंधी हुई थी वो उसको रोक लिया करती थी. She stopped eating the green grass Abu Khan brought for her. Nor did she listen to his stories with interest and affection. अब क्या किया चांदनी ने, जब अबू खान उसको खाना देता था वो खाना बंद कर दिया, उसको जो स्टोरी सुनाता था उसको सुनना बंद कर दिया. She lost her appetite. Appetite means hunger, भूख. उसको अब भूख नहीं लगती थी. Grew very thin, और बहुत ही कमजोर होती जा रही थी. And stared moodily at the hilltop bathed in sunlight. हमेशा वो हिल्स को देखा करती थी. अबू खान did not understand Chandni's anguish. अबू खान चांदनी के इस व्यवहार को नहीं समझ पा रहा था. At last, she decided to speak to him frankly. चांदनी ने डिसाइड किया उसको frankly, directly बात करने के लिए. Dear अबू खान, she said, let me go to the hills, please. Please मुझे हिल्स पे जाने दो. If I stay in your compound, I will die. अगर मैं तुम्हारे कंपाउंड में रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी. Now Abu Khan understood Chandni's problem, but it made him very unhappy. उसको समझ में आ गई थी चांदनी की प्रॉब्लम, लेकिन वो सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हुआ. जिस बात का उसको डर था वही वापस से होने जा रहा था. The earthen pot which contained Chandni's breakfast fell from his hand and broken into the thousands of pieces. उसके हाथ में चांदी के लिए जो मिट्टी के बर्तन में वो खाना लाया था, ब्रेकफास्ट लाया था, वो नीचे गिर गया और कई टुकड़ों में बिखर गया. Why do you want to leave me, Chandni? Abu Khan asked. I want to go to the hills, said Chandni. चांदनी बोलती मैं हिल्स पे जाना चाहती हूँ. Don't you like the food here? I will give you tastier food and much longer rope. मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना लाऊंगा और बहुत लंबी रोप बांध दूंगा तुम्हारे लिए. No, thank you. Let me go to the hills. Do you realize the risk you are running? You obstinate creature, there is a dangerous wolf in the hills. He will eat you up. Abu Khan did his best to warn him. अबू खान ने अपनी पूरी कोशिश की उसको समझाने की, लेकिन वो नहीं समझ पा रही. चांदनी answered, God has given me a pair of horns. I will fight the wolf. चांदनी बोलती भगवान ने मुझे 2 सींग दिए हैं, मैं इनसे वुल्फ का सामना करूंगी और कर सकती हूँ. Fight the wolf. Indeed, have you forgotten the story of your sister Kalwa, who was the size of big? क्या तुम वो स्टोरी अपने फ्रेंड कलवा की स्टोरी भूल गई है, जिसके बहुत बड़े डियर से भी बड़े बड़े सींग थे. She fought to the wolf.
through the night but was killed in the morning. रात भर उसने वुल्फ का सामना किया लेकिन सुबह वो मारी गई. अबू खान narrated Kalwa stories for the fifth. 5वीं बार उसको की स्टोरी अबू खान ने सुनाई. To all this, चांदनी had only one thing to say. सिर्फ एक बात चांदनी ने कही, I want to go to the hills. मुझे पहाड़ियों पर जाना है. अबू खान got very annoyed. Annoyed means angry. बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ. He thundered. जोर से चिल्लाया. You are not going anywhere. From today I will live in a small hut and not move about freely in the compound. तुम आज से झोंपड़ी के अंदर बंद होकर रहोगी और कंपाउंड में भी घूम नहीं पाओगी. Ungrateful as you are, you must still be saved from the wolf. तुम इसी तरह से वुल्फ से बच सकती हो. He pushed her into a small hut and shut the door. उसने अंदर बंद किया और दरवाजा लगा दिया. But he forgot to close the small window at the back. लेकिन वो पीछे से खिड़की का दरवाजा लगाना भूल गया. The same night चांदनी made his window her passage to freedom. और उसी खिड़की से उसी रात चांदनी बाहर की तरफ भाग गई. Chandni reached the hills. It seemed to her that the old hills were standing in a row to welcome her. चांदनी को लग रहा था कि जो सामने जो हिल्स है उसको स्वागत करने के लिए खड़ी हुई है. She felt like a child meeting her parents after years of separation. चांदनी को कैसा लग रहा था जैसे बरसों से कोई बच्चा अपने माँ बाप से दूर हो और आज वो मिलने जा रहा हो. Wherever she went, the tall grass rose to embrace her, the flowers bloomed to amuse her, and the wind sang an endless song of welcome. जहाँ कहीं जाती वहाँ पर उसको ऐसा लगता है सब उसका स्वागत कर रहे हैं. खूबसूरत फूल, झरने, पहाड़ियाँ सब उसका स्वागत कर रहे हैं, ऐसा चांदनी को लग रहा. How different all this was from her past in the prison. कितना अलग एहसास था ये. House of Abu Khan's compound. It was the happiest day in the Chandni's life. That day she played for hours on the grassy slopes of the hills. She met a herd of wild goats who asked her to join their groups. But Chandni politely refused. She wanted to enjoy her new freedom by. दिन भर वो इधर उधर घूमती रही. उसको एक वाइल्ड गोट्स का एक ग्रुप भी मिला जिन्होंने उसको इनवाइट किया अपने ग्रुप में आने के लिए, लेकिन चांदनी ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो अपनी आज़ादी को अकेले एंजॉय करना चाहती थी. The sun disappeared behind the hills. और धीरे धीरे सूरज डूबने लगा. And soon darkness enveloped the grass. जल्दी ही चारों तरफ अंधेरे ने सब चीजों को घेर लिया. And the flowers and the trees. The wind stopped blowing. हवाएं चलना बंद हो गई. And there was stillness all around except for a strange sound which was coming from the bushes. चारों तरफ सन्नाटा छा गया. बस एक अजीब सी आवाज जो झाड़ियों के पीछे से आ रही थी. The sound was like a grunt. What was it? ये क्या है? It wasn't Abu Khan's voice calling her back to the compound. ये अबू खान की तो आवाज नहीं है. Nor was the voice of another goat. ये किसी दूसरे गोट की भी आवाज नहीं लग रही है. Then Chandni thought of the dangerous wolf who lived in the hills. तभी चांदनी को उस खतरनाक वुल्फ के बारे में ध्यान आया जो कि हिल्स में रहा करता था. She felt scared. Scared मतलब frightened. उसको डर लगने लगा. Should she go back to the safety of Abu Khan's hut? क्या वो वापस से अबू खान की झोंपड़ी में चली जाए? No, she said to herself. नहीं. Death in an open field is far better than life in a small hut. किसी खुली हुई जगह पर मरना, फ्रीडम में मरना, आज़ादी से मरना ज़्यादा बेहतर है किसी बंदिश में बंद होकर, किसी की कैद में होकर जीने से ज़्यादा अच्छा खुले में मरना है, आज़ादी से मरना है. The wolf had come out of the bushes. Wolf झाड़ियों से बाहर आ गया and was staring greedily at the Chandni. उसको घूरने लगा. His eyes were shining like burning coal in the darkness. अंधेरे में उसकी आंखें कैसी लग रही थी जैसे जलता हुआ कोई कोयला हो. He seemed in no hurry. इसको कोई जल्दी नहीं थी. He knew the new goat was his. उसको पता था ये गोट उसकी है. The wolf and the goat sized up each other. The wolf was big and the ferocious wherever the goat. Though Haldi was small, but small is not weak. Chandni stood firm on her legs, head slightly bent and horns jutting out. She was picture of courage. ऐसा लग रहा था जैसे सामने एक बहादुर courage की कोई मूर्ति आकर खड़ी हो गई. She looked like a brave soldier. Brave soldier की तरह चांदनी लग रही थी. I must put up in a good fight, Chandni thought. Success or failure is a matter of luck or chance. सफलता या असफलता तो matter of chance है, मौके का
डिपेंड करता है। द फाइट बिगन, लड़ाई शुरू हुई। आई वेंट ऑन थ्रू द नाइट, और रात भर वो लड़ाई चलती रही वुल्फ और चांदनी के बीच में। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट बिगन टू ग्रो पेल एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड, जो चंद्रमा की लड़ाई देख रहा था वो धीरे धीरे पीला होता जा रहा था और पीछे बादलों के पीछे छिप गया। The stars also began to disappear one by one, एक एक करके सारे तारे भी गायब होने लगे। A faint light appeared in the east and the morning call for prayer came from a distance, दूर मॉस्क्यू से, मस्जिद से मॉर्निंग प्रेयर की आवाज आने लगी। The first ray of the sun saw चांदनी lying on the ground, जो पहली किरण सूरज की पड़ी उसमें क्या दिखा, चांदनी जमीन पर पड़ी हुई है। She was completely soaked in blood, पूरी तरह से खून में लथपथ होकर। The wolf tired and sleepy, wolf जो है थका हुआ है और सो रहा है। Was getting ready to devour her, devour मतलब खाने के लिए तैयार बैठा है वो चांदनी की बॉडी को। An assembly of birds perched on the top of tree nearby was debating the result of the, एक चिड़ियों का झुंड जो पेड़ के ऊपर बैठकर ये सब देख रहा था, वो इस बात पे डिबेट कर रहे थे कि इस युद्ध का नतीजा क्या होगा। Who is the winner? One of them asked. The wolf, of course. एक ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स वुल्फ विनर है। मोस्ट ऑफ देम सेड, लेकिन अधिकतर ने क्या बोला, अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस, चांदनी इज द विनर, चांदनी विनर है। एक समझदार बूढ़ी चिड़िया ने बोला, नहीं, वुल्फ इज नॉट अ विनर, चांदनी इज विनर, क्योंकि उसने मौत पाई लेकिन आजादी से लड़ते हुए उसने मौत पाई। दैट्स व्हाई चांदनी इज अ विनर। थैंक यू सो मच। रीड दिस चैप्टर अगेन एट योर होम।